Hello, Hi. Sana. How are you? Hi, How are good. you? How are you? Very well. How's your quarantine going on? Well, of course, it's nice and also boring at the same time. But at the same time, of course, we're all praying that this thing goes faster and people can, live their normal lives. What is your usual day like? Usual day is getting up, making chai for my mom, washing all the bartan, cleaning the house, then preparing for lunch, eating lunch, cleaning lunch ka bartan, then watching some show, and then actually my helper is Okay. so cute. I have two ladies who come home. जब से quarantine हुआ है वो लोग रोज मेरी मम्मी को दिन रात फोन करते हैं and they keep asking how are you cooking, what are you doing, because they know I don't know to cook. Now also she only called to know what are you eating, we want to come back and start working. तो ये सारी चीजें चलते रहती है. बट पूरा दिन मेरा झाड़ू पोता बर्तन कपड़ा इन सब में निकल जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह. Life is great. Life is great. All right. So, Sana, the last conversation that we had with you, it went viral, and people were really happy with the fact that you opened up about your relationship with Melvin Lewis, and you spoke up. What has been your feedback? What has been your space of mind like in the last few weeks? Well, to begin with, I really want to thank you because after your interview, everything reached out to so many people. मतलब जो यकीन नहीं हो रहा था उतना लंबा reach था, and I got so many messages. My DM is like flooded with people, and in a way where people have said that it's amazing that kind of courage you have, and I realized जो आप होता ना कभी कभी when you normally talk to people, and I wanted to tell people because obviously me coming to your show and telling you things were justice. तो देखो इंसान को personally भी वो ले सकता है, बहुत सारे तरीके हैं justice लेने के especially, but when you come and talk it's like मुझे अकेले में सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है, but I would want people like me to be saved, as I told you in our previous interview, and that was the whole purpose of coming all out and talking to you so that it reaches people, because that's how you save, right? अभी जैसे example, अब कभी कभी लोगों को ऐसा होता है कि अरे आप एक ही चीज कितनी बार बोल रहे हो, अरे अभी कोरोना भी तो इतने टाइम से चल रहा है, रोज ही बोल रहे ना हाथ कैसे धोना है, मास्क कैसे पहनना है, तो भी वो रीच नहीं जाती है लोगों को. अब लोग इंस्टाग्राम पे हाथ कैसे धोना है वो सिखा रहे लोगों को, हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो सिखा रहे, जो बहुत बेसिक होती है. जैसे ये सारी चीजें भी जो होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अब्यूजिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेशन, ये 90% 95% जनता जो है ना, लेडीज स्पेशली और बॉयज भी है इसमें काफी, जो ये सेम चीज से गुजर रहे हैं. बट अब क्या हो गया, लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है. You understand, like today's generation will make you believe that cheating and being in an abusive relationship and being in multiple relationship is a trend. That is the worst part. But I'm glad that there are people out there who contacted me, who messaged me. And such bolu Faridun, after listening to their stories, there were stories where I literally cried after reading their messages. I was like, this is too much, yeah. मतलब ये कितने लोग परेशान है ऐसे लड़कों से, या ऐसे हस्बैंड से, या ऐसे इन लॉज से, या होने वाले इन लॉज से. It's very shocking, to be very honest, but I'm glad that the kind of support I received, because जैसे मैंने आपको बोला था that I was in depression and anxiety, and unfortunately I was on sleeping tablets. I will not recommend that to anybody. Like, please, this is my story that I'm saying, but in case you feel something like this, please talk to normal people, and इसका कुछ करो, because टैबलेट्स पे रहना आगे जाके आपका हेल्थ खराब होता है, which is not good. And I think the day I stopped it was the day my mom got to know about it, and she didn't know about it, that is how I was sleeping. And then she was like, please don't do this, ये वो देखो मेरी कसम है. And then I started reciting more and more and more, and that's how I started getting more sleep. And I was like, आपको मैंने बोला था ना कि मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं अल्लाह से नींद आ जाए उसके लिए दुआ करूंगी. मतलब कहते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के लिए you have to be very thankful to the God that you're blessed with. You only realize it with time. Okay, so now, Sana, even Melvin, he did one interview after that, and so he's. You've seen the result of the interview, na? The amazing life, and I've seen the result, but what he's saying is that he's not been cheating on you, he's not been into any relationships, and I'll tell you, Faridun, God has given me these two eyes, and Alhamdulillah, they work. Okay, my brain was freezed for a while, and I know the reason why it was, which inshallah I'll disclose with coming time. But then जब इंसान आंखों से देख लेता है ना, तो वो देख लेता है.
अब पूरा साल तो जैसे मैंने आपको बोला है, लोग आके मुझे कहते थे ऐसा है वैसा है, यहाँ बैठ के दारू पी रहा है, यहाँ ये कर रहा है, यहाँ लड़कियों से मिल रहा है, और मैंने उसे कन्फ्रंट भी किया था उस वक्त पे। और मुझे वो एक एक स्टोरीज कुछ भी वो जो उसका जो वीडियो है ना, वो मांझा लपेटते हुए वैसी मुझे देता था वो। एंड आई ऑलवेज बिलीव फारिदुन, व्हेन यू गेट इन अ रिलेशनशिप, द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इज ट्रस्ट एंड टू बी लॉयल एंड टू लोगों की बातों में नहीं आना. You don't believe everything what people feed you, because that's how the relationship will last. And that is the kind of a person I was. And सुनती रही मैं इतनी परेशान हो गई. Even when I was in London in November, so my friends they were texting, अरे इसको भी यहाँ देखा, इसके साथ. See, मेरा एक फायदा हुआ that people knew him. Whatever amount of people know him, they knew him. That's the reason I got the news. Oh, imagine if I'm dating a normal guy. Who would do this? Who would know it? Until and unless I'm not very public on my social media and people know that this is my partner, they would tell. Otherwise, they would not. Correct? तो अभी एलिगेशन आज तक का किसी रेपिस्ट ने बोला है कि मैंने रेप किया है? मतलब ये निर्भया को 7 साल के बाद इंसाफ मिला है, और उसमें भी ये लोग प्ली मांग रहे हैं. हर दूसरे दिन एक लॉयर कहती है जो भी लॉ होगा, बट वो कहते हैं प्ली दो, मर्सी दो. तो देयर आर आल्सो पीपल जो कहेंगे कि इनको मर्सी दो, ऐसे लोगों को मर्सी दो, एक मौका दो. लेकिन उसकी मम्मी जानती है कि उनका क्या लॉस हुआ है जो कभी वापस नहीं आने वाला, और जिस तरीके से हुआ है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजों में मानते हैं. बट मेरा बोलने का पॉइंट है, कभी कोई अपना एलिगेशन सामने से आके नहीं बोलता. यही बंदा मैंने आपको बोला है पीछे इंटरव्यू में, आपसे इंटरव्यू जब मैं करके गई, मैं अपनी दोस्त से मिली और उसने उस दिन बताया कि उसके एक दिन पहले हमारे स्ट्रीट बॉल लीग के एक और ओनर है, उससे ये बंदा मिला और इसने उसको बोला कि चीटिंग इज नॉर्मल. किया तो क्या हुआ, मैंने किया, सब करते हैं. तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है फारिदुन, जो आप पीछे बोलते हैं आप सामने बोल दो ना. अगर सब करते हैं और नॉर्मल है तो छुपाना क्यों? Like so he came up with he released one audio and he said that and he deleted it. Oh my god. that, hashtag men are victim to hashtag बुलाती है मगर जाने का नहीं, hashtag truth prevail. तो क्या हुआ वो truth का? Why did you delete the audio? एंड आई वांट टू टेल यू, क्योंकि मैं उसके बाद लाइव गई थी उसके दूसरे दिन. वो जब बात हुई थी, बहुत सारे लोग जानते बहुत नहीं जानते, उनके लिए मुझे बताना है कि बेसिकली वो 4th of February की बात है 2020 की. उन्होंने सिर्फ Feb 2020 लिखा है. आई थिंक वो डेट भूल गए होंगे ना, बिकॉज ड्रंक एंड ड्रग्ड, सो इट्स पॉसिबल, और मे बी ही नोज. सो ही रियली, मैं उसके पहले उनके घर पे गई और बहुत झगड़ा हुआ, और उसके ही पहले मैंने उनका फोन पकड़ लिया और सबके मैसेजेस मैंने जो मैंने नाम लिए ना, इनिशियल्स वापस दोहराऊंगी, उन सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया. अब वो फोन खींचे और मेरे सामने ऐसे थे, प्लीज जाओ. वो उनका और उनके पूरे खानदान का मगरमच्छ के आंसू के तो 2-5 टांकी लगी है पीछे, जो दिन भर बहते रहती है. और आपको पता चलता है जब लोग जेन्युइनली रोते हैं या जेन्युइनली बात करते हैं, वो हम इंसान है, उतनी नफ्स को पकड़ सकता है. तो ये ड्रामा करने लग गया. और उसके बाद अब मैं किचन में गई थी अपना सामान पूरा लेने के लिए, क्योंकि इसने मुझे क्राबी में बोला था कि मैंने तुम पे जो खर्चा किया है 1 साल में मुझे वापस कर दो, आउट ऑफ नोवेयर. मैंने कहा भाई तूने दिया क्या है? 4 जूते वो भी गुची लुई विटॉन के होते तो समझ में आता. स्टीव मैडन के. मैंने कहा ब्रो, आई हैव गिफ्टेड यू like way beyond, and I've gifted you trips for goddamn sake. So he asked me and I was like, let me get back and I'm going to give that to you. And he was still trying to patao me in Bangkok airport पे and all that stuff. मैंने बोला चलो जाके देखूंगी, क्योंकि तब तक मुझे सिर्फ अल्कोहल की चीज पता थी. मतलब इसने अपने माँ बाप की कसम वहां पे भी खा ली थी कि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, फलाना ढमका. तो मैंने कहा चलो, एक होता है ना इंसान एडिक्टेड है, शायद कल को हम कोई चीज की माफी दे सकते हो यार, हम इंसान है, वो भी इंसान है, कोई ना हम भगवान है ना वो भगवान है, तो ये तो चीज है नहीं ना कि हम माफी ही नहीं देंगे. मैंने कहा चलो देखूंगी, पर उस वक्त मैं थोड़ी सी नाराज थी उससे. और उसके बाद आप सोचो, एक लड़का आपको बोलता है कि मैंने आपको जो दिया 1 साल में वापस कर दो. मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस. मतलब मैंने तो आपको हॉलीडेज, गिफ्ट्स, कोलैबोरेशंस क्या क्या नहीं दिए हैं. तब मैं उसके घर पे 4th को गई थी, जब वो बंदा बहुत ज्यादा ही अय्याश हो चुका था, जब मैं इससे बात नहीं कर रही थी 10 दिन आफ्टर कमिंग बैक टू क्राबी. एंड आई वाज लाइक ओके, दिस गाय, आई हैव टू फिनिश दिस, बिकॉज मैं लोगों को ये परसेप्शन में नहीं रखना चाहती हूँ कि आई एम डेटिंग. इवन आई नीड टू हैव अ क्लियर लाइफ, एंड दैट इज हाउ आई वेंट ऑन 4th of Feb. तब तो मुझे लड़कियों का 3rd of Feb को पता चला था, एक रात पहले. एंड आई वॉज लाइक टुमारो आई गो एंड कन्फर्म. मैंने सीधा उस पर अटैक नहीं किया. मैंने बोला मैंने ये सारी चीजें सुनी है, बैंगलोर, बॉम्बे की कोई होटल थी, और दिल्ली में ये सारी चीजें हुई है, तो आप मुझे बताओ ये क्या है. अरे सब झूठ बोलते, सब इसके दुश्मन है. ये प्रभुदेवा भाई हमारे यहाँ का, क्या माइकल जैक्सन है, ठीक है, सब इसके पीछे ही पड़े. पूरी दुनिया के शाहरुख, सलमान, आमिर, सबको छोड़ के सब इसके हेटर्स है. तो ये कहते ये है वो है. एंड 1 सेकंड के लिए पता है फारिदुन, इवन दो आई गॉट अ न्यूज फ्रॉम अ वेरी क्लोज पर्सन,
एक इंसान है ना, प्यार में है, उसका ऐसा रहता है कि ठीक है, शायद हो सकता है कि यू नो प्रॉब्लम हुई होगी। अब सोचो मेरा दिमाग कहीं ना कहीं बैक जा रहा है कि यार हो सकता है मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड इमीडिएटली आई कैच हिज फोन। अब मैंने बोला, और उस टाइम पे भी थोड़ी हाथापाई हो रही थी बिकॉज फोन खींचम खाची में, यू नो, या वहाँ। तब मैंने उसको बोला था मैं सबको बताऊंगी कि तू है क्या असली में, यू अंडरस्टैंड, तुम्हारा जो रियलिटी है। अब उसको ये पता चल गया कि भाई ये लड़की तो हाथ से निकल गई, ये तो डेफिनेटली बताएगी। तो जब मैं किचन में गई अपना सामान लेने, क्योंकि अब वो अपनी 5 जूते वापस लेंगे भाई, और चेन और जो ब्रेसलेट छोटी छोटी सी जो दिए थे, एक 40,000 का बर्थडे गिफ्ट जो चेन दिया था, पूरे यूट्यूब पे उसका वीडियो है, बताओ। और हमने जब 3 लाख की घड़ी दी थी तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटो डाल के हार्ट डाला। आप उनको टेस्टी ट्रीट और ये सब ब्रांड के 20 रुपए के वेफर भेज दो, वो टैग कर देंगे पेज को, थैंक यू फॉर द हैम्पर एंड ऑल, तुम 50 रुपए के वेफर्स। और कोई तुमको इतनी एक्सपेंसिव ब्रेटलिंग घड़ी दे रहा है, आप उसको टैग नहीं कर रहे हो। क्रिसमस में भी मुझसे गिफ्ट ले रहा है और वहां पे पता है क्या लिख रहा है फोटो डाल के, you should have not, तो दे दे भैया वापस। You understand, because all these other girls games were going on behind, so you want to show that I am one psycho who's so much in love with you, like, you know, I am in love because that is what I saw coming to me. I didn't sign up for all this bullshit and lies. Sana, I'll have to stop you. There is one comment from Dinesh underscore D157. He's saying, I have seen him around the girls. I mean the way he behaves with them. So many people have seen. अभी मैं आपको अपना DM भेजूंगी अभी, और जो भी मैं प्राइवेट आपको चीजें की बातें कर रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, ये आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी ही लोगों से मुझे आई है, जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया। मुझे तब लगता था कि ये लोग इसके बहुत करीबी लोग हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि यार ये भी बेचारे दुखियारे लोग हैं जिनके साथ ये ऐसी हरकतें करता है। Imagine they rob money from their church chit fund, like the mother, which I got to know from the family. जो हम चिट फंड होता है ना, घरों घर में जमा करते छोटे छोटे पैसे, 5 फैमिली मिलके के रिलीजियसली कुछ करेंगे या कुछ और चीजें करेंगे, होता है ना वो चीज। तो अपेरेंटली पूरा मनी जमा था और इनके घर पे रहना था वो पैसा, एंड उन लोगों ने वो पैसा यूज करके खत्म कर दिया। सोचा 5-6 महीने के बाद की बातें, वो हम कैसे भी अंदर डाल देंगे। एंड ऐसा हुआ कि कुछ बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई, एंड आई वाज लाइक, जो चर्च के पैसे में से चोरी कर सकता है बॉस, वो कुछ भी कर सकता है। But Mendel has said that he did not really appreciate the family coming to the picture. He said that maybe. क्यों भाई, जब आप सब मिलके ग्रुप में करते हो तो फिर ग्रुप में रेडी रहो ना बातें करने, क्यों छुपाओ मैं बातें। जब आपकी फैमिली के साथ में इतनी इज्जत देती थी, वो करती थी, वो तो आपने नहीं बताया। जो इंसान जो करेगा वो भरेगा तो सही ना फारी। अभी सिर्फ मैं ये बताऊं कि ये इंसान कैसा, और इसकी फैमिली जो सब काली करतूतें करती है वो छुपा दूं, ताकि कल को कोई लड़की जो भैया कभी से जिंदगी में कभी शादी हुई ऐसे इंसान की, और वो लड़की गई, तो उसको पहले से पता होना चाहिए ना कि भैया व्हाट इज द ड्रिल। द पॉइंट इज नॉट हाउ बैड द पर्सन इज, द पर्सन शुड नो हाउ। फॉर मी आई टेल पीपल इन डिटेल सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या सिचुएशन है, क्योंकि मेरे साथ हुई थी। जब इस बंदे का एक्स रिलेशनशिप टूटा था, he told me he caught her cheating with multiple boys. She is a gay, okay, she has affairs with girls, and I was like, then why were you dating a gay, you understand? And then I get to know he is no less bisexual. So I was like, अच्छा, तभी मतलब राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, वही बात हो गई जैसे हम कहते हैं ना। You're saying that he's bisexual? Yeah, he is. I don't know if he is, but he goes for boys. I know the boys, they're in Bandra. Okay, so now Yeah. you are उसके पीछे भी बहुत also... लंबी लिंक है, एक और लड़की भी इसमें है, पर अभी वो लड़की का मुझे नाम नहीं लेना, जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो सब ये लोग की सबकी मिली भगत ये सारी चीजों में है। एंड अपेरेंटली ही वाज गोइंग अराउंड विद दिस गर्ल SD फ्रॉम 2017, ओके। अब पर वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो वो कभी उसको इंस्टाग्राम पे लाना नहीं चाहता था कि यार मुझे तो भैया कोई बड़ा बकरा पटाना है, ठीक है। फिर उसका अफेयर एक लास्ट जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उससे शुरू हो गया। वो लड़की ने तो वो अपनी धुन में जो भी थी, जो भी इसने स्टोरी बताई, अल्लाह ही बेहतर जाने। उसके बाद ये लोगों का अफेयर फिर भी शुरू था, ठीक है, पीछे पीछे। अब उसको अफेयर बोलो या जो भी असली बात बोलो, मैं तो इज्जत के लिए अफेयर बोल लूंगी, ये पीछे चालू था। एंड देन सडनली ही सॉ मी, ये लोगों ने मेरे को टारगेट कर लिया और ये प्लान कर लिया कि भैया ये लड़की को पटाना है, क्योंकि यहाँ से नेम फेम पैसा जो भी है, वो कहते हैं ना भागती चोर की लंगोटी सही, वो उनका वो हिसाब है। तो बोले चलो इनको ले लेते हैं। अब इन्होंने मुझे पटाया पुटाया, हर चीज के लिए मेरे पीछे, चलो 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 हर चीज। अब
मैं ऐसे रिलेशनशिप में कभी रही नहीं हूँ फारी, तो मुझे ना ऐसे लगा शायद ऐसे ही होता है, चलो ये रिलेशन है, मुझे भी शादी करनी है, आई गिव इन माई ऑल। शादी करने का ख्याल तब आया जब इतना प्यार मिल रहा था, जो सब ड्रामा, इनको तो सबको मैं एक ऑस्कर जरूर दूंगी लाइफ में। तो ये सारी चीजें थी। एंड देन फिर इसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्या क्या थी ये वो। और जब इसने मुझे गे बोला तो मुझे फिर मैंने बाहर से कुछ चीजें पता भी करी है, जो वो हम उसके बारे में कभी बाद में बात नहीं करेंगे शायद, बट ये चीजें सच है। और फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ मुझे बेवकूफ बनाने का। और ये लड़की को पता था, ठीक है, जब इसको पता चला, जब मेरा रिलेशनशिप बाहर आया और इंस्टाग्राम पे रिलीज हुआ कि करो करो, तो ये बंदी ने बोला, अरे तूने उसको एक्सेप्ट किया, मेरे को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मतलब मेरे लिए क्यों नहीं बताया। बोला, अरे यार वो लड़की को ना मैं यूज करूंगा और उसका फेम लूंगा, जो भी है पैसा लूंगा, जो भी लूंगा, उसके बाद वील हैव अ गुड लाइफ, वील हैव बेटर कोलैबोरेशन, क्योंकि तब तक का मेरा मार्केट बन जाएगा। आप उसका 2018 तक का पेज देखना और 2019 का पेज देखना एंड सी द कोलैबोरेशंस, तो ये सब हो जाएगा। अब इमेजिन दिस मैन एंड एसडी, मतलब ये ना, मैंने आपको जब बोला था ना, मैंने टीवी में देखा ये कि कैसे एक लड़की जो ऐसे रिश्ते में है एक लड़के के साथ मिलके एक दूसरी लड़की को बेवकूफ बनाती है। मतलब समझ रहे हो आप, सोच के बाहर है ये फारिदुन, सोच के बाहर है। मतलब मुझे लगता था कि ऐसे लोग कितने जलील है यार, मतलब अपने लड़के को किसी और के पास भेज दे रहे सिर्फ चंद पैसे और प्रमोशन के लिए। राइट, ओके, आपने पैसे का भी आपने एलिगेशन लगाया था कि दैट so he used your money and the fact that you were spending on him. You've said that in the chat that you arranged for his ticket for going to Dubai and maybe he was cheating on it. So now he's saying that the four basketball teams that you guys own together, he's saying that basically I'm owning them, and if he will say everything he's owning, na? He's not having money, then how am I owning those four basketball teams? Well, obviously because he was getting a lot of collaborations also with me, and he was not owning all four teams. Two was his team, two was my team. So I think he should at least be honest in something else, if not other things. And ये जो बातें हैं, ये तो बेवकूफ जैसी बातें, ये सब बेवकूफ जैसी बातें करता है। और अभी तो इसकी बहुत सारी चीजें बाहर आएगी, आप देखना वक्त के साथ, बिकॉज मुझे तो बहुत सारी चीजें पता चली। इनके पास कितना पैसा भी आपको 2 महीने में पता चल जाएगा। All right, and you also said that he did not want you to work with one of the biggest stars. Yeah. Who's that star? Salman. Huh? Salman Khan. Yeah. We came back from Dubai when I was in Dubai. उसको लगता है जैसे वो सबके साथ उसकी गंदी हरकतें चलती है, उसको लगता है हम भी वही है। हम जिधर जाते हैं, Salman and I share a very respectful relationship, and he is a wonderful man, and he's always looked at me with lot of respect. और मैं लोगों को ये बोलती हूँ, मेरा उनके साथ ऐसा रिश्ता है कि भैया मैं उनको राखी भी बांध सकती हूँ, ठीक है, इट्स दैट प्योर। एंड आई हैव अ गुड रैपो विद सोहेल बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव डन हिज मूवी, एंड अपेरेंटली हम लोग बहुत सारे इवेंट साथ में करते थे, तो एक अच्छा रिलेशन बन गया था। अब इसकी नजर में क्या है, ये बेसिकली क्या चाहता था, ये सारी बातें करके, अरे तुम्हारा ये है वो है करके, ताकि इंसान क्या है, इंसान डर जाए और सोचे कि जाने दे यार, यू नो, इन्वॉल्व नहीं होना मेरे लड़के को, अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत है, क्योंकि यहाँ तो मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रही हूँ ना। तो ये सारी चीजें थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं दुबई में थी, मुझे प्रेस कॉन के लिए फोन आया था दुबई जाने से पहले कि 23rd को प्रेस कॉन है बिग बॉस का और जाना है ये सब। और जब मैं इनको बताई वहां पे आने के, व्हाई डिडंट यू टेल मी, तुम मतलब मुझे अभी बोल रहे। इनको ना सब इन्फॉर्मेशन 2 महीना पहले चाहिए, ये पता नहीं कहाँ के पीएम है, इनको 2 महीना पहले चाहिए। पर ये किनके साथ वीडियो बना रहे, ये हम नहीं पूछ सकते। हम तो रेगुलर काम करते, कैसे रेगुलर काम करते हैं, रोज नए आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो कैसे रेगुलर। तो इनको ये बात पसंद नहीं आई। फिर हम जब दुबई से वापस आए, हम एक दिन मेरे सारे दोस्त, हम लोग उनके घर में बैठे थे, उनो खेल रहे थे ये वो, तो उन्होंने ना मेरे को एक वीडियो भेजा कलर्स वालों ने कि आपको जुम्मे की रातें पे थोड़ा सा गिग होगा, आप और 2 एक्टर्स हैं, उनके साथ आपको करना है। And I was watching the dance video, okay, the choreography. He's like, what is this? I said, no, I have to do a jig. अभी तो तुमने बोला था सिर्फ अपीयरेंस के लिए जाना है, मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए जाना, अभी डांस वांस कहाँ से आ गया, यू लाइक। I was like, what's wrong? इससे पहले मैं किचन चैंपियन में गई थी, हम कुछ कर रहे थे। अर्जुन बिजलानी इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, लाइक आई नो हिम फॉर 10+ years नाउ। तो उसके अंदर ऐसा था कि ऐसी जलेबी ऐसी लटकी थी, आपको ना ऐसे मुंह से लेना था। तो अर्जुन ने मस्ती में क्या किया ना, मुझे ऐसे उठा लिया, क्योंकि मेरे सामने ना जो पार्थ थे, ही इज वेरी टॉल, तो वो जीत रहे थे। मैंने कहा यार मैं नहीं जीत पाऊंगी, मैं छोटी हो रही, कितना ऊपर है, पार्थ के लिए इजी है। आप यकीन नहीं मानोगे, आप कलर्स वालों से पूछ लो, वो बंदे ने, मैंने मस्ती में कह दिया, अरे मेरे से जा ही नहीं रहा था, अर्जुन ने मुझे से लिफ्ट के ले लिया, क्योंकि अपने दिन में तो कोई खोट नहीं है, तो इतना सोचना क्यों बात करने से पहले। अब भी तुम उसको डिलीट करवाओ,
That is like groping somebody on national television. How can you do that? What are you showing people? आप अगर उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाद यही दूसरे फरिश्ते इस दुनिया में है, ये गांधी जी को भी मात मार देंगे। इनकी जो सच्चाई की जो चीजें हैं, अगर ये जो भी अपने इंस्टाग्राम पे डालते उसमें से एक फारिदून 1% भी अगर ये सच होता ना, जो भी चीज ये डालता है, तो उस बंदे की लाइफ बन जाती। बाकी तो आप छोड़ दो, 1% की बात करो। आप जितना इनका ये ड्रामा देखते हो इंस्टा में, जो अच्छी अच्छी बातें सब झूठे। इनके नाना का इंतकाल हो गया था, वो रायपुर में है, और ये बंदा सिर्फ यहाँ पे स्टोरीज डाल रहा है उनके बारे में, सनसेट में इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। मैं बोल रही भाई तू जा ना, आपके नाना का इंतकाल हुआ, क्यों नहीं जा रहे हो? मैंने बोला मैं आती हूँ। तो मुझे क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे सैड सिचुएशन में मैं तुझे फैमिली से नहीं मिलाना चाहता हूँ, यू नो, एक्सटेंडेड फैमिली से। आई वाज लाइक ये सब कौन सोचता है यार? तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कहा आप तो चले जाओ। नहीं, यहाँ पे भैया बैठ के इंस्टाग्राम स्टोरी पे नाना की हिस्ट्री डाल रहे। मैं तभी सोची कि यार ये अजीब कैरेक्टर है। इंसान अगर अपने घर में खुदा ना खास्ता किसी का इंतकाल हो गया, आप घर पे बैठ के स्टोरीज डालोगे, फ्लाइट की टिकट लेके वाले जाओगे? तो ये बंदा ऐसा है। आप इसकी स्टोरीज पे जितनी चीज देखते हो, और ये एसडी पेसडी केएस और कौन है ये पीएस, ये सब फालतू लड़कियां केएस, ये सब लोग नीचे इनके आप सिर्फ कोड्स देखो जो इनके एक्चुअल कैरेक्टर से बिल्कुल मैच नहीं करते। Okay, so you've given out a lot of abbreviations and short forms of the names, but would you at some point of time give out the actual names of the girls? I really Because wish, but I think one of the girls apparently used to call him bhai in front of you. Yeah. People keep saying कि अभी तो ये नया क्वारंटाइन का मुद्दा चल रहा है, पीएमजी बोल रही है। अभी आप वीडियोस तो खतरनाक लोग डाल रहे हैं कि पीएमजी ये बोल रहे घर रहो वर रहो, जो हम एक्चुअली घर रह रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि कुछ लोग देख रहे हैं। सो बेसिकली अभी भी even now. So basically this SD stays right opposite my building, which I always knew, but I never told him that I know it. अब सोचो 1 year relationship, this guy never told me that she stays right opposite my building, and he didn't know that I already know it. But मैंने इग्नोर किया चीजों को। मैंने कहा चलिए ये चीजों को अवॉइड करते, इससे क्या लेना देना, सामने रहती है, रेंट पे रहती है, क्या फर्क पड़ता है। तो आई वाज लाइक ठीक है। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो क्वारंटाइन में लोगों को बोल रहे पीएम ने क्या कहा है फॉलो करो, खुद घर के बाहर है, और उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरी जो 2 आंखें हैं बहुत तेज है। So yeah, like that's how this messenger is. He doesn't practice what he preaches. Okay, so Shruti.NitinB is saying that Sana, I had gone through a rough breakup, but as compared to you, I'm so small. How can you overcome? Please tell me. See, I'll tell you, सच कहूँ ना फारिदून, it's not easy thing to overcome. And when people ask me, I said, what I can't overcome is not that I am missing him or something. Dude, the trash is gone out of my house. आपके घर में एक कचरा वाला आके कचरा लेके जाता है तो आप रोते तो नहीं हो ना। तो एक कचरे वाली आई 4 और एक कचरा लेके गई, अब वो आपस में शेयर करेंगे। तो मुझे वो चीज का बुरा नहीं लगता, और कोई लड़की को नहीं लगना चाहिए। अगर एक ट्रैश आपके घर से बाहर जा रहा है और दूसरे ट्रैश के पास जा रहा है, तो आपको उस चीज का कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। बट यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जहन से उन चीजों को निकालो और ये सोचो कि होता है यार इंसान। अब जैसे मेरा 1 साल बर्बाद हुआ है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके 4-5 साल बर्बाद हो गए। ये वक्त तो वापस नहीं आता ना। दिस इज योर प्राइम टाइम, यू डोंट वांट टू मिस योर गोल्डन टाइम बीइंग कनेक्टेड टू सच नेगेटिव पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली ये रहता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। चीजें निकालना थोड़ी मुश्किल है, और वो निकालना मुश्किल है कि आप कैसे मैनिपुलेट हो गए, आप कैसे गधे बन गए, वो चीज रहेगी। सो वो वक्त के साथ ही ऑनेस्टली फारिदून जाएगी। वो इम्पॉसिबल है कि मैं अभी सो जाऊंगी आग बंद करके और कल आँख खोलूंगी और ये चीजें खत्म हो जाएगी, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन आई एम श्योर वक्त के साथ ये चीजें ठीक हो जाएगी। एंड अपने दोस्तों के साथ रहो, बात करो। Right. It's _Nishu_Yadav. Well, your eyes are saying the truth. So apparently you've not... Even my mouth, Yadav, my mouth is also saying the truth. Trust me. You apparently not disabled any of your comments in any of your posts, from what I understand. You've not, but no. Apparently Melvin has disabled comments in a few of his posts, apparently. Yes. Even all the live calls that he goes for, they're all already selected people. So that is how pure the conversations are. And obviously, Sonakshi, life. Huh? Sonakshi Bagla is saying, we are with you. Keep going, girl. Love you the most.
थैंक यू। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस लवली वुमेन। मुझे यू नो इन जनरल जब सब लोग बोल रहे थे, मैंने कहा कि आई एम ब्लेस्ड इन अ वे कि I am on social media, I am a public figure, and I have this kind of fan following. The amount of support that people have shown me, trust me Faridun, I don't lie, Allah की कसम, but इन लोगों ने मुझे जितना help किया है स्ट्रॉन्ग फील करने में, लोग कहते हैं ना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वाज नॉट फारी, आई वाज नॉट, आई वाज, मैं ऐसी ऐसी बिल्ली थी। और मुझे बहुत, मेरे साथ ये कोई पहली बात नहीं है, बट ऐसे लोगों ने मुझे बहुत यू नो पैसे लेके भाग गए, केसेस कर दिए, फलाना कर दिए, धमका कर दिए, पैसे देने का टाइम आया, इस तरीके से ना बहुत लोगों ने जिल्लत दी है। और मैं हमेशा सोचती थी कि अल्लाह उन सबको दिखाएगा, एक दिन वक्त आएगा जब सब चीजें क्लियर होगी और इंशाल्लाह सबके सामने पता हो जाएगा लोगों को कि सच्चाई क्या है। बट कुछ चीजों में मैं नहीं कर पाई और मैं सहते गई, एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। लोगों को लगा कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ, पर इस टाइम मुझे अपने लिए खड़ा होना था। मैं बहुत डरी थी, मुझे एंजाइटी लेवल डबल हो गया था। आप नेहा से पूछ सकते हो, टाइम्स वाली को, कि मैंने उसको 50 बार फोन किया था, मैंने कहा मेरी हार्ट रेट बढ़ गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों पर डर लग रहा है, मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। शी इज लाइक, तुमने सच बोला, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ये जो मैंने बोला है, अगर मैं नींद में सोती भी रही ना फारिदुल, और अगर आपने मुझे उठा के बोल दिया कि बताओ, मैं आपको ये सेम चीज बताऊंगी, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कुछ, सब मेरे दिमाग में, मैंने देखा है हर चीज में, मैं जी हूँ वो जिंदगी, तो मैंने वो सारी चीजें देखी है। तो जाहिर सी बात है सोचना और सोच के बोलना ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो सब पता है, रट्टा मारी हूं मैं, समझ लो, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है, तो उसमें मुझे सोच के बताने की जरूरत नहीं कि अच्छा मैं अभी सोच के बताती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वो याद रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो। अभी जब कोई इंसान इंटरव्यू में कुछ बोलता नहीं है, तो इसके लिए नहीं बोलता क्योंकि कहता अभी मैं नया स्टोरी बना दूंगा, क्योंकि एक नया क्वेश्चन आया है, अब 5 क्वेश्चन के बाद शायद यही क्वेश्चन गोल मोला के आ जाए, मुझे याद नहीं रहे, तो इससे अच्छा मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। एलिगेशन क्यों नहीं क्लियर किया भाई, सवालों का जवाब दो। और मेरे इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी आने के बाद और आपकी ये वीडियो के बाद इतने लोगों को हिम्मत मिली है जो विक्टिम्स थे सामने आने। अनफॉर्चुनेटली क्वारंटाइन आ गया, अदरवाइज ये सारे विक्टिम्स रेडी है आके बात करने के लिए। Okay, Riz00904 is saying hats off Sana, be strong. Okay. Okay, and let's see, I can't believe him. Okay. Also his Instagram followers are half fake. For people Okay. to know, they were all bought. And जब मैं अपना इंस्टाग्राम कर रही थी और जब मैंने एक बार बोला था कि यू नो सब लोग प्रमोट करते हैं अपना पोस्ट के नीचे आता है ना प्रमोट, मैंने कभी किया नहीं, तो मैंने कहा मुझे भी करना है ये यू नो करके, ताकि रीच बढ़े, क्योंकि रीच कम हो जाती है ना इंस्टाग्राम की एवरी टाइम, जरूरी नहीं है पूरे व्यूअर्स आपको देखे। तो मुझे कहे बेबी ऐसे कभी नहीं करना, बिकॉज इंस्टाग्राम को अगर पता चल जाए ना कि आप उनको पैसे देते हो, तो नेचुरली वो लोग कभी ऑर्गेनिकली आपके पेज को प्रमोट नहीं करेंगे। अब पता चलता है थ्रू इंस्टाग्राम का मेन एक बंदा है जो इंस्टाग्राम में काम करता है, ही इज लाइक सना उसके आधे फॉलोअर्स सब खरीदे हुए हैं, ही कीप्स रीफिलिंग एवरीथिंग, एंड ही हैज 2 people सिटिंग बिहाइंड एंड टेकिंग केयर ऑफ हिज पेज, व्हिच आई डिडंट नो थ्रू आउट द ईयर। Okay. Kajal_D_Power is saying, Sana, you definitely deserve much better and will soon find a true person in your life. How tough will it be for you to believe in a girl, in a boy now, for a relationship? very and this is my only fear, to be very honest। अगर कोई मुझे कहता आपका फियर क्या, मेरा यही फियर है कि यू नो उस बंदे ने ना ऐसी जो एक गर्लफ्रेंड या एक वाइफ के साथ जो बातें करती है उसमें से कोई लाइनें नहीं छोड़ा, तो मुझे कभी कभी लगता है कोई बोलेगा ना तो मुझे सीधे में वापस से फ्लैशबैक में जाऊंगी कि ये मैंने सुना है पहले कभी। एंड आई थिंक दैट इज फारिदून इज द स्केरियस्ट ऑफ ऑल। मतलब ये 1 साल जो हुआ है मैं वो भी बर्दाश्त कर लूं, बट टू बी इन दैट, अगर मुझे बहुत सारे रिश्ते आए हैं मेरे घर में भी ये जानने के बाद, और इंस्टाग्राम से भी बहुत ज्यादा प्यार आया है, बट यू नो आई वाज लाइक राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर you know taking that step, maybe with time once I'm mentally free and fine। but you know ये definitely एक चीज है जो मैं दुआ करती हूँ कि you know ठीक हो जाए, और मैं बिलीव करूं, लेकिन सही इंसान को बिलीव करूं। ऐसा नहीं है कि बिलीव कर लिया कोई गधे को बिलीव कर लिया वापस, और एक बंदर के साथ अपनी जिंदगी मुझे वापस नहीं बितानी है। बहुत मुश्किल से मैं जू से बाहर आई हूँ, और मैं बेशक चाहूंगी कि एक अच्छा घर हो, ना कि मैं कोई जू में सारे अनेक जानवरों के साथ रहूं जिनका कोई ना ईमान है ना कुछ है, बस कैसे नोच के खाना है वही उनका धर्म है और वही उनका क्या कहते हैं वे ऑफ लिविंग है। और एक चीज तो है कि इंसान
ईमानदारी से जिए, ईमानदारी से काम करे और इज्जत दे लोगों को। यहाँ तो मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग जो इनके लिए काम करते हैं, जो इनके असिस्टेंट्स है, उनको मैंने बदसलूकी उनके साथ करते हुए देखी है। मतलब चप्पल उठा के कौन मारता है एक लड़की को स्टूडियो में? एंड आई होप कि वो लड़की बोले hit a girl by yes, with a slipper. yes, assistant right in front of my eyes while we were rehearsing. We had done 3 shows. एक हैदराबाद में किया था और एक सैमसंग का किया था और एक और कौन सा एक शो किया था यार इसके साथ, कुछ तो एक और चीज की थी उस टाइम पे। हाँ, यूट्यूब फैन फेस्ट में तो इसने मतलब मेरे हाथ पैर जोड़ के मेरे से फेस्ट करवाया था। मैंने उसको बोला नहीं, मुझे 2 दिन पहले मेरे को उसने रेडी करवाया, नहीं करो क्योंकि अमांडा सरनी ने मना कर दिया इसके साथ डांस करने के लिए। तो सिर्फ उसने इससे कोरियोग्राफी करके अपना पार्ट किया, बट शी रिफ्यूज टू डांस विद हिम। सो अपेरेंटली ही वाज के करो एंड दैट टाइम आई एम टेलिंग हिम, अरे आप आपकी जो 2 बेस्ट डांसर्स है एसडी और एचएस, उनके साथ कर लो ना, दे आर बेटर डांसर्स एंड आई कांट लर्न दैट फास्ट बिकॉज तब तक तो मुझे ये सब भाई के पीछे सेक्सुअल टॉक्स और अफेयर्स ये सब तो पता नहीं था। तो मैंने कहा इनके साथ कर लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले नहीं आपके साथ ही करना है। फुटेज कैसे मिलेगा लाइफ में? अभी रिलेशनशिप अनाउंस हुआ है, अभी सडनली लोग फैन फेस्ट में देखेंगे तो एक अलग माहौल बनेगा ना। इस बंदे ने मुझे कराया। आप सोचो फारी, वो बंदे ने चलो यूट्यूब फैन फेस्ट से बोले नहीं आपका नाम लिख के नहीं आ सकता है। आप सोचो मैं भी कितनी बेगैरत के बिना नाम के भी परफॉर्म कर रही हूँ उधर, कि मेरे को नाम भी नहीं आ रहा। चलो नाम नहीं आया, आपका जो भी यूट्यूब फैन फेस्ट और ये बंदा जाने के फैक्ट क्या है, इसने मुझे ये गोली दी कि नाम नहीं आ सकता, सिर्फ यूट्यूब वाले से आएगा। एंड उसके बाद इंसान एक स्टेज पे जाता है तो यार आप थैंक यू तो बोलते हो। हम हर किसी को थैंक यू बोलते हैं ना, डांसर्स को थैंक यू बोलो, बट आपको थैंक यू नहीं बोलना है। तो ठीक है, ऐसा होता है, तो बस ये हुआ है। Okay, so Sana, thank you very much for speaking up. I'll take one last question, just comment for you. It's a positive comment. Being Zain Khan 27, Faridun sir, please tell Sana to notice me. Hi. Hi, I am noticing. I'm going to read the comments probably later after the live session is on, but I just want to say thank you everyone for like literally supporting me, because honestly I have very limited family members. I don't have a brother. I have no one to go and take an opinion from. So I'm very happy that all of y'all were there for me. Okay, and apparently your followers have increased quite a bit from what I understand. They've been increasing quite rapidly, right? Yeah, yes. Luckily, always like 3 lakh followers have gone up. So I'm alhamdulillah very happy, and I hope that they see right inspiration in me and they see the strength, and I hope the girls see the strength in me and they also become one, because my whole purpose of doing this is to give girls strength to come out and talk and stop living in the toxic relationship or things that cannot be mended. Please come out, don't get scared, because लोग अभी भी मुझे टेक्स्ट करते हैं फारिदुन, they are scared. लड़कियों उन्हें ब्लैकमेल करते हैं जिससे कि इन्होंने ऑडियो क्लिप डाला तो इनको लगा मैं रुक जाऊंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। तो हाँ, बट एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगी, आपका 2 मिनट का वक्त लूंगी। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं ये सबको दुनिया को बताऊंगी कि आप कौन हो, तो वो समझ गए कि मैं बताऊंगी। तो जब मैं किचन में अपना सामान ले रही थी वापस, तो ये बंदे ने किचन के डोर के बाहर जैसे पैसेज होता है ना, इधर वहां खड़े रह के रिकॉर्डर ऑन कर दिया और आप सुने ही होगे, वो बोल रहा है उसके पीछे मैं बोल रही हूँ। जो बाइजूस में कैसा होता है, ए बोलो बी बोलो, वैसा। तो वैसी वो भी बोल रहे हैं, वो बोल रहे अच्छा तुम पब्लिकली सबको बताओगी? मैंने कहा हाँ मैं पब्लिकली सबको बताऊंगी। तो बेसिकली फिर उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया और वो सेक्शन फिर उन्होंने डालकर अपना ऑडियो क्लिप डाल दिया। तो मुझे सिर्फ लोगों को ये बताना था कि ये कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी। जब मैं ब्रेकअप कर रही थी उस वक्त इंसान का दिमाग देखो, मैनिपुलेशन का लेवल कि ऑडियो। उसके पहले उन्होंने क्या किया ना, जब मैं झगड़ा कर रही थी तो अपना फोन ऑन कर दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मैंने भी अपना फोन ऑन कर दिया, मैंने कहा मैं भी रिकॉर्ड करूंगी तुम्हें। जैसे मैंने अपना फोन ऑन कर दिया उन्होंने अपना फोन ऑफ कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब सच्ची में साइको है क्या? उसके बाद इन्होंने सोचा अब क्या करूं, तो सना कलेक्ट कर रही है, फोन तो देख नहीं पाएगी, तो चलो ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिर सब ऑडियो रिकॉर्ड हुआ और उस तरीके से बात बाहर आई। All right, so Sana, you speak really well. I hope that you would want to maybe write at some point of time. I think there is a writer inside you. Yeah, okay. Just rapidly I'll be a speaker. I think my talking, when people say they see my eyes and they can believe the truth, I'd rather be a talker than a writer, because बातों को बोलना और talker as well as writer, talker as well as yeah, I really want to come out and talk and इंसान मेरी आंखों में देखो, and you know like, so let's see, yeah, but let's see. There are so many ways of giving hopes to people, yeah. Absolutely. बंदर और zoo and जो सारा पूरा अपना analogy आपने draw किया, that was very prompt, like very. कौन सा
Bandar or zoo and this and all that? That was very creative. इतनी इज्जत देती ना कि मैं अपनी अपनी इज्जत करना भूल गई थी फारिदून, और मैं कहीं खो गई थी, और मुझे इस तरीके से बताया जाता था कि मैं बहुत कम हूँ और मेरी सोच बहुत कम है और मैं कोई चीज के लायक नहीं हूँ, और मैं अपने आप पे डाउट करने लग गई थी। एक वक्त था कि मुझे लगता था कि शायद मैं वाकई कम हूँ, शायद वाकई मेरी सोच छोटी है। मुझे इस तरीके से यू नो जलील कह लो या नीचा दिखाया गया वो साल, और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये नहीं हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं क्यों छोटा फील कर रही हूँ, हर चीज में छोटा दिखाना, हर चीज में गलत साबित करना आपको। एंड ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ कोई नई चीज नहीं हुई, सबके साथ ऐसे ही होता है, हर लड़की के साथ ऐसा होता है, कुछ अच्छे लड़के उनके साथ ऐसा होता है। तो ये इसके अंदर कोई जेंडर की बात नहीं है, बट ये सारी चीजों में जेंडर होता ही नहीं है। ये सारी चीजें कोई भी कर सकता है, लड़का हो या लड़की। मैं एक लड़के की बात करूँ क्योंकि मेरे साथ ऑफकोर्स मैं लेस्बियन तो हूँ नहीं, तो एक लड़के के साथ ही रिलेशनशिप में थी। लेकिन जो जो लड़के हैं उनके साथ भी ऐसा होता है जब लड़कियां ये सारी चीजें करती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चीटिंग और ये सब कोई जेंडर से लेना देना नहीं है, ये लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी इक्वली अमाउंट पे करती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करो। और जब लोग कहते हैं कि स्पेसिफिकली आप हम लोगों से काम करते हैं, एक इक्वेशन होता है और इक्वेशन के लिए आपको लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, बट अगर मुझे नाम लेना होता तो बहुत सारी लड़कियों के साथ लोग काम करते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले रही हूँ, मैंने गिन चुन के 4 लोगों का नाम लिया है, इनके बारे में मैं जानती हूँ और मैंने देखा है। लेकिन अगर जिनका मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, उनका भी कुछ था पर मुझे पता नहीं चला, तो वो बात अलग है। बट इन लोगों का मैंने अपनी आंख से देखा है और मेरे पास उसके ही टीम के ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो चीज को ऑथेंटिकेट किया है और उसके कुछ घर वालों ने भी ऑथेंटिकेट किया है। तो मैं एकदम ठोक बजा के बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। All right. Thank you so much, Sana, and thank you very much थैंक for यू your पारी। time. And all यू the ऑल्सो best टेक wishes. केयर Thank ऑफ योरसेल्फ, ओके? घर पे रहना, I will. यहाँ पे बोलना घर पे रहना, और फिर यहाँ हमारे लोगों के घर मत जाना आप। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूँ। I'm completely at home. All right. ठीक है, Take so you care. are Take actually care. following the All right. right footsteps of Modi ji, right? Absolutely. 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 Yeah, Absolutely. so All right. Take I care. Bye hope bye. this Bye bye.